afternoon. Good afternoon, यार मतलब सबको नींद आ रहा है. Good afternoon. So thank you, madam, for giving such a descriptive introduction for me. बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, मेरे को भी लग रहा था ज़्यादा हो गया. So today's the topic which I would be discussing is on. Sir, for the Yes, so I would like to have a hand mic if possible. Yes. So the topic is virtual investigation. Now, as we are moving ahead to the next era, so the way our investigation has been moving up, how much percentage of case we investigate? Are you all aware of it? 2 to 3% cases we investigate. And believe me, उतना ही करते हैं और उस पे ही हम सोचते हैं बहुत बड़ा कर रहे हैं कुछ. For insurance companies, one of the biggest challenge is those 97% of the cases we don't investigate, whether there are some or the other kind of frauds which are also happening over there, which we are missing it. There are a lot of low value claims which we don't investigate, that we miss it off. We don't investigate those cases because we feel that investigation charges ही उससे ज़्यादा हो जाएगा. So, in this scenario, for a company, the kind of value which we add is not substantial enough. So now, when we come to investigators like you guys, you are more smart into field level activity. You guys are more street smart people, to be more precise. You know how to handle any kind of issues which happens on the field, so that, and you know how to collect the evidences. But investigation, I feel, should not be restricted to only this 2 or 3%. It should go to the maximum level. Then only the companies will be confident to pay the claims at the earliest. Today what happens is, whenever a claim comes, there is a surveyor who is deputed, he takes his own time to survey, and then the reports are being submitted, and then finally if the company feels investigation की ज़रूरत है, the case is being given to the investigator. Now, if a case comes to an investigator, it's the biggest headache for a customer or an insurance company. Believe me, जो भी मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, and this is my experience. If a case goes to an investigator, he or she will take his time, 15 days, 20 days, 30 days, sometimes it goes to 2-3 months, and then we are submitting a report. And after that again the payment will happen or not happen. So now just think, be more empathetic towards the customer, and think if you are a customer, your vehicle met with an accident, and your vehicle, you have only one vehicle with which you go to office and come back. And if that vehicle repair takes more than 30 days, how will you go to office daily? How will you go around everywhere? How much money you will spend in Ola or Uber? It is practically not possible for a person to be there staying idle for 30 days. तो उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है. So in those scenarios, we have to also understand how can we relieve the tension or the pressure which a customer is undergoing when a claim is being lodged, or when a claim becomes suspected, or when it goes for investigation. So with all those thought in process, we have come up with this topic known as virtual investigation. How can we virtually investigate a case? So coming to the next slide. Okay. So these are the agendas which we will be discussing today about the risk areas. In fact, Harish has already covered a big part of the risk part, so I will not be spending much time on that. And then digital transformation, and then what are the artificial intelligence tools. So I will discuss few tools which even as we move ahead, the tools will be adding up,
but these are few which I have come up with. And then what should be our soft skills? So I will just show you at the end a video on soft skill, how a person was approached. Okay. So how a person was approached, what negative happened, and how with the help of soft skill it got improved. So coming to the risk quotient, today if you all know the IDA definition, the biggest problem is the definition also came quite late. The entire industry overall today is not very sensitive towards fraud. This is what I understand. Till now, the insurance investigators are not regularized, no licensing. So good work done by the team AFT to ensure that you guys get licensed, and gradually obviously they are also planning to take you all up to the ideal level so that you get a license. And once those kind of recognitions comes in place, it becomes easier, or licensing, it becomes easier for us to also take up your verdict in court. Today also we take even court takes the cognizance of whatever you say in court, but still it becomes more legalized in those scenarios. So we all know why fraud happens. Fraud happens because of these four major reasons: pressure, opportunity, rationalization and collusion. So whenever you submit an investigation report, I know all of you know all this, ये कोई नया चीज नहीं बोल रहा हूँ आपको, but अब हम आते हैं कि investigation वाले क्या हमको help करना चाहिए. So whenever you submit a report, your report lacks what was the pressure on which, because of which this fraud has happened, what was the rationalization behind which this fraud happened, or what was the opportunity, where was the loophole because of which this fraud happened. ये रिपोर्ट में नहीं आता आप लोगों का, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आना चाहिए. अगर the day you will start giving those parts in your investigation report, it becomes easier for an investigation company or for the insurance company to establish the reason क्यों fraud हो गया. If I don't know कि ये fraud क्यों हुआ, ऑफेंस के पीछे मोटिव क्या है? मोटिव, अभी कोई लोग सोचते हैं कि गाड़ी ये नहीं चला रहा था, ये मिस्टर ए गाड़ी नहीं चला रहा था, तो गाड़ी ये नहीं चला रहा था तो कौन गाड़ी चला रहा था और क्यों इसका नाम डाला गया, ये आपके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो कल वो कोर्ट में जाके बोलेगा मैं चला रहा था, मुझको नहीं मालूम है, मैं ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा सीसीटीवी कैमरा, मैं गाड़ी चला रहा था, एंड देन द एंटायर पर्पस गेट्स डिफीटेड. सो मेरा ये कहना है कि व्हेन यू आर सेइंग कि ये लेडी थी, ये गाड़ी हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम नहीं डालना चाहता था एक्सीडेंट में, इसलिए इसने अपने भाई का नाम डाला एज ए ड्राइवर, और उस समय भाई कहाँ था एक्चुअली, तो वो 4-5 चीजों को जब कोरिलेट करते हुए बताते हैं, then it becomes a better investigation report. Okay. So I will not spend much time on this. This has already been discussed in overall around 25,000 crore का globally fraud हुआ in non-life insurance in 2023. This is as per the report, forensic report published by NAIC. And if you see today what happens, again I told this part is already captured by Harish, so not more to capture. Today we identify approximately 8%, 7 to 8% of cases as fraud. But generally across globally the number ranges between 10 to 15%. So we are way behind. And the reason is not you. The reason is not you, or not only you, the reason is we, our entire law system, our entire evidence gathering system, all those are also the reason because of which we are unable to reach to that level where global standards are. So fraud actually happens at 3 different stages. One is at application stage, claim stage, and internal employees are also involved in the fraud. So moving ahead to, so this is a small video which I would like to show you all, like how insurance is digitally moving ahead, and then we will also understand where we need to cope up with the company's sales process or underwriting process. So this is just a small video. It's quite PwC, yes. The insurance industry is undergoing a perfect storm.
Changing customer demands, advances in technology, increases in data, the impact of natural disasters, shifting demographics, and evolving regulations are just some of the factors combining to shape the industry to its roots. Customers want more from their insurance. Whether businesses, consumers, or businesses offering services to consumers, they all now expect the speed and elegance of digital retail. Conducting business when they want, where they want, using the channel of their choice. And customers are increasingly savvy and able to compare offerings and prices with the competition in an instant. Technology is creating a wealth of new possibilities. The advent of big data creates opportunities for insurers to make use of unprecedented insights into their end customers' life, property, health, wealth, and behavioral patterns. Advances in artificial intelligence are allowing insurers to sift through this data quickly and efficiently, enabling more personalized approaches to risk management, reduced liabilities, and lower premiums in return. The ability to access data faster than ever before also allows insurers to settle claims more quickly. What used to take weeks and months is now happening in days or hours. In the past, a common strategy for insurance players was to wait for the competition to move first, in order to see if the new direction was successful or not. But that strategy doesn't work in this disrupted environment, with new competitors from outside the insurance space. All these changes have given rise to new players with new ways of working and competitive business models. By the time you decide to move, it may be too late. So, as insurers look towards a very different market in the future, how can they navigate change and achieve success? In this environment, it's important to learn fast and, if you fail, fail quickly, so you can learn your lesson and move on. Established players must find ways to be more versatile, to think like a disruptor and act like a startup, while all the time maintaining a clear focus on the customer. In times of rapid change, it's hard for executives to separate fact from fiction. Easy to be seduced by the latest trend, and tempting to be drawn into blindly copying what the competition is doing. But following the crowd is not the answer. The most successful companies across industries understand that they have to build a strong and distinctive identity that allows them to carve out their own market position, rather than reacting to a market that has been created by others. Creating such a strong identity means that you must be very clear about the way you will add value to your customers in the future, your way to play, and also very focused on building the few differentiating capabilities that will allow you to deliver that value better than anyone else. Once you know which capabilities your organization needs to excel at, you can then develop a capability agenda to take you from where you are today to where you need to be tomorrow. It's important to consider how quickly you can build these new capabilities, and by when you will need them to be mature and integrated. Should you build them organically? Should you acquire them through M&A? Or should you partner with other players? Being very clear about the specific capabilities you need to excel at allows you to focus your entire organization on what truly matters to your customers and build a powerful engine of growth. Disruption is here to stay, and not everyone will succeed. It is the players who have the courage to commit to an identity based on what truly differentiates them who will have the opportunity to shape the insurance industry of the future. This video was specifically to make you all understand that with time, you cannot follow the same traditional approach of investigation. Every time cases will not come to you and you will go on field and investigate. So today what happens, if you are getting 100 cases to investigate, your average success rate is around 40%. So the remaining 60% customers are getting troubled. So let's go again on the 60%. Out of those 60%, some 25% cases are still where you have some suspect but you are unable to collect some evidences. But the remaining ones, 30-35%, are the genuine customers who are investigated. Now these customers, they will never come back to the insurance company, to that insurance company for renewal of their policies.
Is this not a big problem? Yes. So don't you feel we are creating hindrances for the penetration of insurance as we move ahead? So we are being considered like that. Even though we come out saying that we do lot of savings, so like Bajaj, we do around 600 crores plus of saving every year from insurance fraud, but still we are not patted the way we expect. Why? You also do lot of investigation and come across high number of fraud, but you don't get paid well to that ratio. If you would have brought that much of business, you would have been kept on the shoulder or on head, and they would have taken you abroad for a trip. Don't you think so? Yes. So this is a normal problem which happens. And why this happens? Because we are the reason. We are not empathetic towards customer. We don't analyze the case properly before investigation. We come up with lot of genuine cases where the customer finally feels that his claim was genuine, still he has been harassed by the insurance company. So that's the reason you have to understand now it's a time that we should change from the traditional approach of investigation to a digital approach. Now what and how we should move to digital approach. So now let's move to the next slide. This slide says how we should enhance, how the enhancements can be fulfilled. So this shows the challenges which we have today. The challenges are, the geographies are in the remote areas. So today insurance companies, to increase their penetration, they are even doing business in the rural area where our investigation fees enhances. If I have to investigate a case in a rural area, my fees will get enhanced. Or in a Naxalite belt or in Nagaland, Northeast, तो हम उतना दूर तक नहीं जा पाते इन्वेस्टिगेशन करने, और अगर जाते हैं तो हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. सेकंड, रिसोर्स नहीं मिलते हैं. So you will not get good resources also in this rural area. ये एक सेकंड चैलेंज है आप लोगों का. थर्ड है, फिजिकल मीटिंग भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हर जगह पे एक बार टेबल खोला तो 3-4 चक्कर अगर लगाना है तो इट बिकम्स प्रॉब्लम. तो फिजिकल मीटिंग एक प्रॉब्लम हो जाता है इन्वेस्टिगेशन. सेकंड इशू इज टाइमलाइन कंस्ट्रेंट. कस्टमर्स डिमांड्स आर शिफ्टिंग नाउ. अभी recent new insurance companies are coming up. They are ready to give the payout to the customer within few minutes. उनके क्लेम को कुछ मिनट्स में करना है, और मिनट्स में अगर क्लेम करना है, पे करना है, और मैं अगर उस केस को इन्वेस्टिगेशन में डाल दूं तब तो वो महीनों में चला जाएगा. सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है. थर्ड, देयर आर लॉट ऑफ लो वैल्यू क्लेम्स, एग्जैजरेटेड वैल्यू क्लेम्स, जिसको हम नॉर्मली इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते. तो एवरेज क्लेम साइज अगर देखा जाए मोटर में, तो एवरेज क्लेम साइज इज 35,000 रुपीज. हमारा एवरेज इन्वेस्टिगेशन लाख रुपए के ऊपर चालू होता है, 50,000 के ऊपर चालू होता है. तो जब मैं एवरेज ही 35,000 है, तो मैं सोचो ना 85 to 90% केसेस तो मैं इन्वेस्टिगेट ही नहीं करता हूँ, वो सीधा चला जाता है, मैंने वो पेमेंट के लिए जाता है. So these are the major challenges which I foresee in the journey toward digitalization जो होता है. इसको कैसे सॉल्व करना है? So we have to learn the digital maturity curve. Now, so if you see this slide, how the maturity curve should be. Initially, our current approach is more on trigger management. Manually case allocate होता है हमको, and then we recruit some forensic scientists who will investigate, और हमारे investigator जाते हैं फील्ड में और काम करते हैं. So this graph has been divided into two parts. One is the time, how time is moving, and second one is how we are going to create the value for the customer. So value creation के लिए we have to be digitally aspiring. So as an investigation companies, you all are over here, you have to also develop skills related to digital इन्वेस्टिगेशन या डिजिटल एस्पिरेशन आपके पास होना पड़ेगा. नहीं तो आप अभी हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि 2 या 3% केस इन्वेस्टिगेट होता है. हर रोज मुझे 3 से 4 नए लोगों का फोन आता है कि सर मैं ये कंपनी के लिए काम करता हूँ, मुझे आपकी कंपनी में एम्पैनल होना है. रोज आता है. अभी आप सोचिए मेरे लिए अगर कोई एक इन्वेस्टिगेटर है, सातारा लोकेशन है पूना के बाजू में, वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर है जिसको मैं महीने में 5 केस इन्वेस्टिगेशन के लिए देता हूँ, और अभी सातारा से कोई दूसरा आदमी आ गया तो मुझे भी काम दीजिए, तो उसको भी रख दूँ, तो वो बेचारा जो मेरे
साथ 5 साल से काम कर रहा है, उसकी क्या गलती है? एक नया आदमी आया उसको दे दूं, या जो पुराना मेरे लिए मेरे एक फोन पे दौड़ता है, भागता है, सब काम करता है, मैं उसको रखूं? बट ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर आप, अब क्या होता है उस सिचुएशन में, मैं आपकी एक गलती देखता हूँ, दूसरा इन्वेस्टिगेटर डाल देता हूँ वहां पे, फिर आपका केस बढ़ जाता है, 5 केस से बढ़ के 2 पे आ जाते हैं या 3 पे आ जाते हैं। या कल नया ट्रांसफर हो गया, कोई नया आदमी आया, वो पुराने कंपनी में कोई और इन्वेस्टिगेटर के साथ काम करता था, वो वहां पे आदमी लगा देता है, फिर वो उससे चलता, फिर आपको बिजनेस कम हो जाता है। दिस इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम व्हिच यू गाइस आर फेसिंग। तो ये 2-3% में ही टिके रह जाएंगे तो हमारा थोड़ा सा रोजी रोटी प्रॉब्लम होगा, दूसरा काम देखना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर कोई मतलब नहीं है ना काम करने का। तो वी हैव टू बिकम डिजिटली स्मार्ट, ताकि मैं कंपनी को बोलूं कि सर ये जो 97% केसेस आप छोड़ते हो ना, उसमें से मैं 10% केस मैं इस तरीके से डिजिटली आपको इन्वेस्टिगेट करके दूंगा और सिर्फ 10 मिनट में दे दूंगा, इन्वेस्टिगेशन करके खत्म कर दूंगा। कैन यू टेल दैट? 10 मिनट में 10% केस बहुत बड़ा होता है। मैंने, अगर मैं मोटर का एक केस देखूं तो बजाज में मोटर का एवरेज एवरी मंथ 50,000 क्लेम आते हैं, तो 50,000 का 10% 5,000 केस होता है। 5,000 केस अगर आप बोलेंगे 10 मिनट में करके दे दूंगा, आपका भी इनकम बढ़ेगा, कंपनी को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अभी कंपनियां क्या कर रही है, मतलब सी यू, इसीलिए आपके पास जब केसेस आता है तो यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स ऑन सच रेशियो कि आपके पास जो 2-3% आता है जल्दी खत्म हो जाए, ताकि मैं नए केसेस पे काम करूं। तो इसके लिए देयर आर फ्यू टूल्स लाइक वॉइस इंटेलिजेंस। वॉइस इंटेलिजेंस क्या है मैं आगे बताता हूं। फिर एनालिटिकल मॉडल्स आपके पास होना चाहिए। अभी टुडे आज आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हो, आज मैं तो सिर्फ बजाज का मेरे पास डेटा है, आपके पास तो सारे कंपनी का डेटा है। एक कंपनी से क्लेम आया, 10 कंपनी से क्लेम आ रहा है आपके पास। Are you capturing those data at one master level and are you doing analysis on those data? अगर आपको करते हैं आप तो कितने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वो सब चीजें आती है, वो एनालिटिक्स रिपोर्ट नहीं आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। होता होगा तो बिट्स एंड पीसेस में आता होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब अगर आता होगा तो हमारे तक तो नजर में नहीं आया। तो इशू क्या है सबसे बड़ा कि आपको you have more data compared to, obviously इंश्योरेंस कंपनी के पास डेटा बहुत ज्यादा है, बट वो हमारे कस्टमर्स के ऊपर है। आपके पास अलग अलग कंपनीज का डेटा है, तो उसको लेके आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो और कैसे आप नया ट्रेंड या पैटर्न या बिहेवियर एनालिसिस निकाल सकते हो लोगों का। देन कम्स टू डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन। आज डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने के लिए आप लोग कितना टाइम लगाते हो? एक डॉक्यूमेंट आप क्या करते हो, एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आया पोस्टमार्टम, आप वो पोस्टमार्टम लेके जाते हो हॉस्पिटल, जाते हो ना सर, हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल को दिखाते हो और पूछते हो कि सर ये आपके यहाँ से इशू हुआ है, तो बोलता है सर नहीं है, 6 दिन बाद 6 दिन बाद पहुंचते हैं तो सर अभी ऑपरेशन में है, अब वेट कर रहे हैं, कितना बैटरी वेस्ट हो रहा है जस्ट इमेजिन। उसके बाद और 3 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद अगर सर जिंदा रहे तो ठीक है, नहीं रहे सर तो मतलब वो नया प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब नॉर्मली एक छोटा सा काम करने के लिए 10-10 दिन लग जाता है काम करने में। हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्यू मिनट्स, वो आपको सोचना है। वी विल कम टू दैट दोस स्लाइड्स। तो these are few digital steps which we can take which will help us to create more value। हमारा जो बैंडविड्थ है, जो मैनपावर आप लगाते हो, अब एक ही काम करने के लिए आप सोचो एक आदमी को 4 बार भेजोगे, आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? आपको फीस तो हम वही दे रहे हैं, अगर मैं फीस डबल कर दूं तो भी वही प्रॉब्लम रहने वाला है, अगर 5 गुना कर दूं तो भी वो प्रॉब्लम रहने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनी अमाउंट ऑफ फीस यू पे, क्योंकि आपका विजिट जो है कस्टमर तो स्मार्ट है, उसको भी मालूम है इससे मिलो मत, 10 दिन मत मिलो जो बंदा आ रहा है, उसके बाद 10 दिन बाद उसको एस्केलेट करो आईआईडी को और सीईओ को कंपनी को, अपने आप ये लोग सब घबरा के आएंगे और पे कर देंगे। नॉर्मली कंपनीज में ये प्रॉब्लम होता है, तो वो जानबूझ के आपको ज्यादा डेट देता है। अब आप इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो, उसके बाद आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है, नॉन कॉपरेशन में चला गया केस, फाइनली इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मेरे को इन्वेस्टिगेटर की जरूरत क्या है, पे करना है। तो यू हैव टू डेवलप दैट स्किल ऑफ डिजिटली हाउ टू इन्वेस्टिगेट केसेस थ्रू डिजिटल मोड, सो दैट आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपका बैंडविड्थ जो यूज होता है वो कम यूज हो और ज्यादा काम हो सके एंड कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट हो सके।
So these are few existing approach जो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, जैसे ट्रिगर लेते हैं, जैसे मोटर थर्ड पार्टी में। अब ये सब जेनरिक ट्रिगर्स है जो कंपनीज जिसको यूज करके आपको केस रेफर करती है। ये कुछ हमने निकाला है, इससे बहुत ज्यादा होता है, बट दीज आर फ्यू मेजर ट्रिगर्स। जैसे कि मोटर टीवी में बैकडेटेड कवरेज यूज होता है, रिपीट क्लेम्स हो गया तो वो ट्रिगर होगा, अगर डिले हुआ है एफआईआर में तो ट्रिगर हुआ। वैसे ही ओन डैमेज में, अगर ओन डैमेज में कोई ऑड आवर्स में एक्सीडेंट हो रहा है, अगर टू व्हीलर का एक्सीडेंट रात को 2 बजे हो रहा है तो वो हमारे लिए ट्रिगर है। ऐसे ऐसे एग्जांपल ट्रिगर्स के हैं। वी आर आल्सो यूजिंग द फॉरेंसिक टूल्स। हम की टेस्टिंग करते हैं कि वेदर द सेम की जो गाड़ी चोरी हुआ जिसमें 2 चाबियां थी, उसमें से एक चाबी तो गाड़ी में छोड़ तो नहीं दिया, उसको तो दोनों चाबी लेके आना है हमारे पास, गाड़ी चोरी हुआ तो ज्यादातर हमको पता चलता है कि एक ही चाबी है, तो दूसरा चाबी को हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये ओरिजिनल चाबी है कि नहीं है। अगर उसने डुप्लीकेट चाबी बनाया था तो उसने इंश्योरेंस कंपनी को बताया था कि नहीं बताया था। ऑल दोस उसके लिए हम फॉरेंसिक से टेस्ट करते हैं। सेस्मिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सेस्मिक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक हुआ तो काफी यूज किया था हम लोगों ने। दिस हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई वेदर वो जो बिल्डिंग गिरा है वो अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट हुआ था जिसके कारण ये गिरा है, या बाद में जाके और 2-4 हथौड़ा मार के तोड़-ताड़ दो, क्योंकि टूटी गया, 2-4 क्रैक लग गया तो तोड़ा गया, वो सेस्मिक टेक्नोलॉजी से पता चलता है। वैसे ही सोशल मीडिया एनालिसिस के बारे में, बट आज सोशल मीडिया कैसे करते हैं हम? एक आदमी का नाम लेंगे, खोजेंगे फेसबुक पे, लिंक्डइन में, अलग-अलग सोशल साइट में जाएंगे। कोई ऑटोमेटेड साइट यूज नहीं होता है जहां पर अपने आप को सारे जगह से स्कैन करके लेके आए और बताए कि ये आदमी इतने सोशल मीडिया पे है और इस तारीख को ये करता है, ये किया, जो भी XYZ है उसके बारे में पता करना है। ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कुछ केसेस में। लाइक एक फैक्ट्री में आग लगा, नॉट फैक्ट्री में, फॉरेस्ट में आग लगा, तो पेपर प्लांट का फैक्ट्री था, तो अब वो 400 एकड़ घूमना और सोर्स ऑफ फायर खोजना वाज अ टफ टास्क। तो उसमें हम लोगों ने ड्रोन यूज किया, जिससे विदिन 2 आवर्स हम पता कर लिए कि व्हिच वाज द लोकेशन फॉर थेफ्ट। टेलीमेटिक्स यूज होता है, गाड़ी कहाँ है, कब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लैंड लॉन्ग क्या था, वो सब पता चलता है। एक्सीडेंट रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं हम लोग, यू माइट बी नोइंग कि एक्सीडेंट हुआ तो बॉडीली इंजरी कितना हुआ, ये सब हम लोग आज करते हैं। दिस इज today's standard investigation process which we all are following. Now is this enough for us to move to the next level? I feel this is not enough. This is only a point which has made us more stronger to find out the reality, but as we move ahead हमने अलग-अलग चीजों के बारे में आपसे how artificial intelligence can be used to move to the next level. So this is one of the example of document authentication. अब डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्लेम आता है, हाउ टू वेरीफाई वो डॉक्यूमेंट के लिए आप हॉस्पिटल जाते हो, गैरेज जाते हो, आरटीओ जाते हो, है ना, पुलिस स्टेशन जाते हो और वहां से आप लेके आते हो डॉक्यूमेंट्स। अब वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में आपको 7 से 10 दिन लग जाते हैं, या आपको मल्टीपल विजिट करना पड़ता है, एडिशनल कॉस्ट लगाना पड़ता है, बैंडविड्थ आपका एक्स्ट्रा जाता है, कस्टमर बहुत ज्यादा कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन होता है। नाउ न्यू मेथड क्या है? न्यू मेथड में अभी क्या हो गया है? This is a case study of एक simple dummy name दिया हुआ है इस हॉस्पिटल का, it's a dummy name of a hospital, उसका invoice आया। अब now just understand this concept very clearly। मैंने ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है अपने पास, नहीं तो आप लोग वैसे ही बैठे रह जाएंगे, दूसरे लोग कर लेंगे, नए इन्वेस्टिगेटर कर लेंगे। अब मैं आपको केस दूं, आप 30 दिन में करोगे और एक दूसरा इन्वेस्टिगेटर है वही डॉक्यूमेंट मेरे को 3 मिनट में दे रहा है, मैं 3 मिनट वाले को दूंगा ना, मैं 3 वालों को क्यों दूं? तो क्या होता है कि जैसे कि 2 तरीके हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट का एक रिपोजिटरी है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जितने स्टेट्स है, हर स्टेट्स का अलग फॉर्मेट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। फॉर एग्जांपल सबका मैंने एक डेटा रिपोजिटरी बनाया, हर एक का एक सैंपल मैंने अपने फोल्डर में रख दिया। अब जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट उस स्टेट से आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो ऑटोमेटिकली वो स्कैन करेगा और वो तुरंत बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट सेम पैटर्न में है कि नहीं है, या 80% ये डॉक्यूमेंट मैच करता है कि नहीं करता है, या अगर नहीं मैच करता तो कहाँ मैच नहीं करता है। तो बहुत से मोबाइल क्लेम जो आते हैं, मोबाइल इंश्योरेंस के क्लेम, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि काफी फ्रॉड हो रहा है। अमेज़न का बिल है, वो संजीव द्विवेदी के नाम से बिल था, उसको कन्वर्ट करके सुरेंद्र जग्गा के नाम बना दिया और वो क्लेम कर दिया उन्होंने कि मेरा मोबाइल था, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। अरे मोबाइल कभी खरीदा नहीं, चोरी हो गया और यहाँ कंपनी पे कर रही है।
लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो 240% लॉस रेशियो चल रहा है, जितना प्रीमियम आया उसका 240% पे हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन, अब ये चीज एक सिंपल, अब Amazon से जाके बिल वेरीफाई करना भी प्रॉब्लम है ना, बट Amazon का एक फॉर्मेट सेम है, उसका लोगो इधर होगा, उसका इधर डेट लिखा रहेगा, इस तरह का बिल होगा। सो नाउ टूल्स हैव कम, जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक POC किया है कंपनी के साथ, वो टूल्स वो डायरेक्ट स्कैन करता है विद इन नॉट इवन 1 मिनट, वो तुरंत बता देगा आपको कि ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली किसके नाम से था, इसमें कहां पे उन्होंने चेंज किया, कहां पे जेरॉक्स करके चेंज किया होगा, या कहां मेटा डेटा में क्या चेंजेस किया है, जो सर बता रहे थे उस तरह की चीजें वी डू इट डायरेक्टली थ्रू द सिस्टम। सो दैट इज वन, एंड विद इन फ्यू सेकंड्स में हो गया, जो कि हम महीने लगाते हैं। सेकंड ये एग्जांपल है, मेरा ही चेहरा है, आई एम द पर्सन, ये मेरा आईडी कार्ड है। अभी क्या होता है कि हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग पे, वीडियो कॉल पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ केसेस में वर्चुअल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब गांव नहीं जा सकते हैं, अब पता नहीं कि वो आदमी संजीव द्विवेदी है या कोई और है जो बात कर रहा है। अब ये आप देखिए, ये मेरा आईडी कार्ड है लेफ्ट वाला, जो कि जब मैं 2013 का आईडी कार्ड है, जब बजाज ज्वाइन किया था, और जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन वो मेरा शकल था, वैसा दिख रहा था, ठीक है। अब वो वीडियो ने स्कैन करके उसने बताया 99.52% ये आदमी वही है, जबकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो चेहरा है ये मैच नहीं कर रहा है इधर ठीक से, ये चेहरा में थोड़ा जवान लड़का दिख रहा है और इधर एक बुढ़ा सा आदमी दिख रहा है, बाल उड़ा हुआ है ना, घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो किसी बाल छिला हुआ, अब वो बाल छिला हुआ था, थोड़ा थोड़ा उगा था बाल, उसमें ये चेहरा और ये चेहरा को उसने मर्ज करके बताया 99.57% वही आदमी है जिसका आईडी कार्ड है। अब अगर आपको किसी से वर्चुअली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी को वीडियो पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उससे कुछ सवाल पूछ रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा ये वही है? अभी आप मेरे छोटे भाई से मिलेंगे, वो मेरे जैसे ही दिखता है, फिर या मेरे पापा भी मेरे जैसे ही दिखते हैं, अब कोई भी बैठ जाएगा मेरी जगह पे, आपको लगेगा वही बात कर रहे हैं, तो ये चैलेंज है। सो इसीलिए एज वी आर मूविंग अहेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंक्लूजन हमें हमारा इन्वेस्टिगेशन में वी हैव टू गेट इट डन। कुड यू ये जस्ट कहां पे करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, दिस इज वॉइस इंटेलिजेंस। अब वॉइस इंटेलिजेंस क्या होता है? इट्स अ टूल व्हिच विल recognize whether you are the same person or not, that is okay, but whether he is talking confidently या उसमें कुछ गड़बड़ी है जब वो बात करता है। तो आज हम लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारे पास वॉइस इंटेलिजेंस का कोई प्रोसेस नहीं है पता करने के लिए कि फोन पे वही बात कर रहा है कि कोई और बात कर रहा है। उसने जब प्रॉब्लम रेज किया, व्हेन सो इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लेम आया तभी करना है। इन्वेस्टिगेशन हम जब कॉल सेंटर पे कॉल करके मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज एन एक्सीडेंट व्हिच हैज हैपेंड, है ना, या मेरा एक हेल्थ क्लेम, मेरे फादर का हेल्थ क्लेम है, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो वो सही में बोल रहा हूँ या जबरदस्ती बोल रहा हूँ या बना के स्टोरी बोल रहा हूँ, वो हमें आज पता नहीं चलता जब तक मैं फिजिकली वेरीफाई ना करूँ। तो सो मूविंग अहेड, एक्चुअली आज के डेट में बॉट के थ्रू कॉलिंग हो रहा है या ऑप्टिमाइज, दिस विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर बैंडविड्थ, कॉस्ट कम लगेगा, स्पीच टू टेक्स्ट पूरा कन्वर्ट हो जाता है, तो जो भी बात हुआ एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इन टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली आपको रिपोर्ट बनाने में इजी हो गया। यू विल नॉट फॉरगेट आल्सो थिंग्स, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड आल्सो, तो रिकॉर्डेड हो जाएगा, आपको एविडेंशियली वैल्यू भी हो गया कि जब बात कर रहे हो उसमें कस्टमर टिक करता है उस बटन पे कि जो भी बात हो रहा है वो रिकॉर्डेड हो। इससे और एक फायदा है कि कल के डेट में जो प्रॉब्लम आती है आप लोग को, ग्राउंड पे कोई बोलता है इसने मुझसे पैसा मांगा, तुम्हारे इन्वेस्टिगेटर ने मुझसे पैसा मांगा, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व, ये लो वॉइस रिकॉर्डिंग सामने है, कस्टमर ने कंसेंट दिया था, उसमें कब कहां मांगा हूं मैं, हालांकि उसके बाद भी मांग सकता हूं, बट मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि फिर भी मैंने टू सम एक्सटेंट प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज, जब कस्टमर अवेयर होने लगेगा कि जो भी बात करना है आपको मुझसे वो रिकॉर्डेड ही बात करना है, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करना है, तो वो धीरे धीरे दैट सिचुएशन विल कम कि ये जो बहुत इजी टारगेट है इन्वेस्टिगेटर, दैट इजी टारगेट से भी आप लोग बाहर निकल जाओगे। सो आई विल शो यू अ वीडियो क्लिप अगेन ओवर, ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा बेसिस। देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है कि आदमी जब बात कर रहा था तो कितना एनर्जी लेवल पे था, कितना मेंटल स्ट्रेस लेवल पे था, कितना एक्साइटेड था, कितना कॉन्फिडेंट था। जस्ट लिसन टू दिस वीडियो, आपको समझ में आएगा।
महीना कौन है? I want to nominate a man who's ran for president to change the course of an already weak economy. इलेक्शन के लिए And then खड़े just थे 6 weeks और before his प्रेसिडेंशियल election, इलेक्शन पे वो बात कर रहे saw हैं। had suffered the biggest collapse since the Great ग्राफ Depression. है जो दिखाता है कि A man who कितना stopped the कॉन्फिडेंट slide into depression and put us on the long road to recovery. Knowing all the कितने while एक्साइटेड है। that no matter how many jobs that he saved or created, there'd still be millions more waiting. Worried about feeding their own kids, trying to keep their hopes alive. I want to nominate a man who's cool on the outside. फुल्ली कॉन्फिडेंट आदमी, पता चल रहा है कि बंदा एकदम सच बोलने का कॉन्फिडेंट नहीं रहता। बाकी जब झूठ बोलता है तो उसकी बातों में गड़बड़ होने लगती है। I want a man who believes, with no doubt, that we can build a new American dream economy, driven by innovation and creativity, by education and yes, by cooperation. हाईएस्ट लेवल पे By the way, after last night, I want a man who had good sense to marry Michelle Obama. So this was the video for him. अब सेकंड वीडियो दिखाता हूँ इसी आदमी का। और ये सेकंड वीडियो में आपको समझ में आएगा कि इसका वॉइस इंटेलिजेंस से कैसे पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Ms. सबका Lewinsky. कैसे मालूम है? I never told मोनिका anybody लेविस्की के to साथ lie. उसके ऊपर में Not a ब्लेम आया single सबका ये बात time. है। Never. These allegations are false. And I need to go back to work. अब देखिए इसका स्ट्रेस लेवल देखिए 92% स्ट्रेस लेवल है उस आदमी का। आप समझ रहे हैं? अब नाउ basis this confidence, concentration while talking, energy level, उसका passion of speaking, उसका emotion, easiness, stressfulness, thoughtfulness, ये सब के basis पे एक score generate होता है। This score will help you to understand whether the person is telling right or wrong, or he is under tremendous pressure while he is speaking or not. तो जब आपको हर केस में फील्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली इन्वेस्टिगेट करना है, कस्टमर से बात करना है। जब आप बात करते हैं तो स्कोर चलते रहेगा आपके कंप्यूटर में। मैं आपको दिखाऊंगा उसका आगे कभी एक एग्जांपल, बट वो वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है, वो मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। सो इससे फायदा क्या होता है? इससे आपका फ्रॉड रेट जो होता है ना, सिग्निफिकेंटली फ्रॉड रेट बढ़ जाएगा। आज जो 25-30% केसेस जो आपको लगता है कि फ्रॉड है लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं, वहां पे यू विल गेट दिस एज वन ऑफ योर पॉइंट। इट विल नॉट बी अ प्राइमरी एविडेंस, बट एटलीस्ट इट विल बी अ कोरबोरेटिव एविडेंस व्हिच सेज एंड साइंटिफिकली ये सब प्रूवन है, इसके ऊपर पीएचडी किया हुआ है, तो वो रिकॉर्ड कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। इसमें कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगा क्योंकि जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। जो केस में कस्टमर एकदम कॉन्फिडेंट है और सही बात कर रहा है, उसको अननेसेसरी उसको जाके बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो यार, मैंने प्राइमा फेसी आपको केस समझ में आएगा कि जेन्युइन है। आज सोचिए, आज में 50,000 क्लेम आता है महीने में बजाज में। बजाज टारगेट कर रही है कि मेरे को हर महीने में 5 लाख क्लेम आए। 5 लाख क्लेम आएगा तो मैं कैसे इन्वेस्टिगेशन इतना करूं? नहीं वो 5 लाख क्लेम आएगा तो इन्वेस्टिगेट कैसे करूंगा? दिन से जाग गए 5 लाख बोल। तो उतना इन्वेस्टिगेट करने का मेरे पास टाइम नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है। तो मेरे पास चाहिए जो जेन्युइन कस्टमर है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। समझ रहे आप? ओके, वैसे ही ओके। दिस इज एन एग्जांपल जो कि हमने अपनी कंपनी में अभी यूज करना चालू किया। दिस इज एन एग्जांपल केस स्टडी ऑफ मिस्टर मोहम्मद। वो सुपर बाइक यूज कर रहा था विच मेट विद एन एक्सीडेंट, और मोहम्मद की जब सुपर बाइक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें कुछ गाड़ी के पार्ट्स डैमेज हो गए एंड ही टोल्ड दैट हिज ब्रदर हैज बीन ड्राइविंग दिस बाइक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। सो दिस इज द स्क्रीन। जब मैं टेलीकॉलिंग में बात कर रहा हूं तो बाजू में एक स्क्रीन देखिए, ये 2 बार इसने हाई अलर्ट दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो वो बात करते समय वो उसके टोन के बेसिस में, एनर्जी के लेवल में और ये सब चीज के बेसिस में वो बोलता हाई टेंशन, नॉट श्योर, मीडियम रिस्क, एक्साइटेड, नॉट श्योर, हाई रिस्क आया, हाई रिस्क पे था। अब इफ यू रीड दैट साइड, सो पहली बार ही वाज ऑन हाई रिस्क व्हेन स्टेटमेंट अबाउट एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ रिपेयर, उसकी गाड़ी की रिपेयर की कॉस्ट जब पूछा गया था, पहले जब उसने क्लेम किया है उसी ने, तो उसको मालूम है कितना क्लेम, बट वो बताते समय ही वाज हेजिटेंट।
उसको थोड़ा सा हेसिटेंट हो गया बताते समय, देन ऑटोमेटिकली सिस्टम ने बोला कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क है। सेकंड, जब उससे पूछा गया कि आपके भाई गाड़ी चला रहे थे, योर ब्रदर वाज ड्राइविंग द व्हीकल, एंड दैट टाइम अगेन मिस्टर मोहम्मद हेसिटेटेड एंड टुक पॉज टू कंफर्म वेदर हिज ब्रदर वाज ड्राइविंग और नॉट। सो दीज आर द टू हाई टेंशन का मैसेज आया हमारे पोर्टल पे, एंड बेसिस दिस वी अंडरस्टूड कि इसमें ड्राइवर इम्प्लांट होगा या इसमें इतना खर्चा नहीं हुआ होगा। नाउ आई नो वेयर टू हिट, नाउ आई नो व्हिच क्वेश्चन टू आस्क, व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच, इज इट नॉट यूजफुल। आज मैं जबरदस्ती जा, अच्छा आप और एक बात सोचिए, आज यहाँ पे जग्गा जी बैठे इन्वेस्टिगेशन करने, वो जाएंगे ग्राउंड में, वो तो 50 सवाल पूछ ही लेंगे। अब जग्गा जी के अंदर में कोई लड़का है नया नया ज्वाइन हुआ, वो तो वो उतना सवाल पूछेगा नहीं। अब हर जगह तो यू कैन नॉट स्टैंड एंड सेम लेवल का क्वेश्चन पूछ सको, हर जगह पे आपको बंदे का, अब वो कब तक सीखेगा, जब तक वो सीखेगा तब तक करोड़ों अरबों रुपए डुबा चुका रहेंगे कंपनियां। तो दिस इज आल्सो अनदर प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज अनदर स्टेप ऑफ, ध्यान रखिएगा जग्गा जी को बादाम और काजू खाना पड़ता है। तो वो बादाम और काजू खाने के लिए जग्गा जी को अच्छा रिजल्ट देना है, तभी बादाम काजू खरीदने के लायक इन्वेस्टिगेशन फीस मिलेगा। आपकी वही टॉपिक पे आ जाए, बाहर निकलो सर उस टॉपिक से। वो माया बिल्कुल, पैसे की चिंता मत करो सर, कर्म करते रहो, बाकी तो आना आ जाएगा। बाकी तो सब मिथ्या है। कर्म ही हो Once रहा more, है। please. फिर से बोलिए, क्या बना? अभी जो आपने बोला फिर से बोलिए होता है। पैसे का चिंता। हाँ, पैसे की चिंता मत कीजिए। वो माया है सब। नहीं क्या कुछ उससे आपको नहीं, इंश्योरेंस मुझे अच्छा लगा। इंश्योरेंस के अच्छा ओके, अच्छा बाकी वो आया, ओके ओके, अरे ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज रिलेटेड टू डिवाइस इंटेलिजेंस। डिवाइस इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? डिवाइस मतलब क्या होता है? डिवाइस मतलब जो क्या है डिवाइस? एग्जांपल मोबाइल इज वन डिवाइस, लैपटॉप, अभी सर ने कवर किया ना, मोबाइल है, आईपी एड्रेस के थ्रू हम पता करते हैं, मोबाइल नंबर है, 50 चीजें हैं। तो आज हम लोग के पास भी डोंट हैव एनी रिपोजिटरी ऑफ नेगेटिव मोबाइल नंबर्स। आज आप लोग कितने फ्रॉड पकड़ते हो, उसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको मालूम होता है, मिलते हो, और बाद में पता चलता है ये कस्टमर फ्रॉड था, चोर था, उसका मोबाइल नंबर आपके पास नेगेटिव लिस्ट में है कहीं? कहीं नहीं है। आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नीचे वाले लड़के ने इन्वेस्टिगेट किया, वो इन्वेस्टिगेट करके चला गया, अब नया आया, उसको भी पता नहीं है। यू आर गेटिंग? तो ये लार्जर टर्म है, बिकॉज़ टुडे क्या होता है कि आज एक मोबाइल देखा जाता है और वेब से हम लोग जो पता कर सकते हैं कि कौन से वेब से उसने पॉलिसी लिया था, वो बंदे ने फ्रॉड किया, उसका एक नेगेटिव डिवाइस का लिस्ट बना हुआ है, रिपोजिटरी। कुछ कंपनियां वो रिपोजिटरी के बेसिस में हमें बताती है कि ये जो पॉलिसी लेने आया है बंदा, जिसने क्लेम करने आया है, ये उसी आईपी एड्रेस को यूज कर रहा है जिस आईपी एड्रेस से पिछली बार आपको फ्रॉड मिला था, उसी आईपी एड्रेस को यूज कर रहा है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो वही मोबाइल नंबर अगर दोबारा आ रहा है कहीं पे पिक्चर में, वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रिगर पॉइंट में हिट होना चाहिए, वो अगर रिपोजिटरी नहीं बनाएंगे तो। आने वाले सब इनोवेटिव अप्रोच में क्या हो रहा है कि ब्लैकलिस्टेड आईपी एड्रेसेस है, जियो लोकेशन मॉनिटरिंग होता है कि अभी आपने पॉलिसी लिया है दिल्ली में, लेकिन मोबाइल नंबर बिलोंग करता है चेन्नई का। अरे दिल्ली में पॉलिसी ले रहा है, एड्रेस दिल्ली का जगह मोबाइल नंबर चेन्नई का, यार ये क्या है सिस्टम? चांसेस है कि नहीं है इसमें फ्रॉड होने का? वैसे ही फोन नंबर ब्लैकलिस्टेड है, जो मैंने अभी बात कर रहा था, सेम आईपी एड्रेस यूज्ड फॉर मल्टीपल टाइम। अब वेब बेस्ड बिजनेस होता है जब कंपनी में, जब हम वेब सेल्स से पॉलिसी इशूड होता है, तो वो कस्टमर, अलग अलग कस्टमर अपना पॉलिसी लेने के लिए वेब पे जाते हैं, पॉलिसी लेते हैं। वो अपना थोड़ा पानी थैंक यू। तो वेब बेस्ड पॉलिसी हम लोग लेते हैं, तो इसमें होता क्या है कि हर आदमी का अपना अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपने उससे पॉलिसी लेना चाहिए। और जब वो कोई मल्टीलाइन चैनल या एजेंसी चैनल से कोई पॉलिसी लेता है,
तो वो एजेंट का ही लैपटॉप होगा, उसका आईपी एड्रेस होगा, करेक्ट। तो जब वेब सेल से पॉलिसी आ रही है और सब में सेम आईपी एड्रेस आ रहा है या सेम मोबाइल नंबर आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है ना, है कि नहीं? तो वैसे ही आपको कल पता चल सकता है कि 15 क्लेम आ गए राजस्थान में और सारे 15 क्लेम हैदराबाद से बुक हुए थे और सब में वो नंबर है। जब कॉल करते तो हैदराबाद का वो जवाब देती है ना वो लेडी, या जो भी आप अभी सॉरी शॉप है या जो भी है, तो उससे आपको पता चलता है कि तो नंबर उधर चल रहा है, चलता है ना वैसे में वो नंबर। तो वो इनफैक्ट वी हैव टू गेट इनटू दोस काइंड ऑफ डिवाइस इंटेलिजेंस मोड सो दैट आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने उस केस में मैं कितने दूर तक इन्वेस्टिगेट करूँ। टुडे अननेसेसरी मैं 30 दिन इन्वेस्टिगेट करूँ या 1 दिन में 2 दिन में काम खत्म हो सकता है। तो दैट इज द चेंज आई एम टॉकिंग अबाउट रोबोटिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये नया ट्रेंड आने वाले समय में आने वाला है और ये आज ये ट्रेंड नहीं है मार्केट में। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत सी कंपनियां अब धीरे धीरे आ रही है, बोलती है कि हम रोबोटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बिल्ड करेंगे। एक्चुअली किसी के पास नहीं है, ग्लोबली किसी के पास नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस पे काम कर रहे हैं हम लोग और इस पे आज से 2-3 साल बाद बहुत से चेंजेस आ जाएंगे। सो टुडे क्या होता है कि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस नहीं है, हम कस्टमर से मिलते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। जक्का जी हूँ मैं, मेरे को सारा सवाल मालूम है कैसे पूछना है, कैसे घुमा के सवाल पूछना है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछूंगा नहीं, ऐसा घुमाऊंगा कि वो उसको लगेगा कि वो कोई नॉर्मल बात कर रहा है और उसने वो जवाब दे दिया जो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं जगला जी हूँ, मैं 25 साल 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। अब मेरे टीम में एक लड़का है जो अभी ज्वाइन हुआ 1-2 साल से, उसको मालूम ही नहीं क्या सवाल पूछना है या किस आंसर पे मेरे को नेक्स्ट क्या सवाल पूछना है। इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन। इन्वेस्टिगेशन इतना इजी नहीं है क्योंकि हर आदमी, इट इज नॉट अ फॉर्मूला कि 2+2 4 ही होगा। ये जैसे अभी आप लोगों ने कोई पूछे थे भिंड मुरैना, आप लोग गए और मुरैना में उसने गुंडागर्दी किया, मारपीट करने वाला था, लेके गए, तो हर जगह आप एक ही फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी एक्सपीरियंस कैसा है और किस सिचुएशन को कैसे आप घुमाते हो जवाब देने में। वैसे सवाल पूछना भी आपको, अब बहुत लोग क्वेश्चन है लिस्ट बैठ जाते हैं लेके और कोई क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बोलता हूँ कि वो लिस्ट लेके बैठना चाहिए, बट क्वेश्चन पूछने का अंदाज बहुत अलग होता है। नॉर्मली अगर हम इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का अंदाज बहुत ही अलग लेवल होता है। कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, कस्टमर को पता ही नहीं चलना चाहिए। तो ये सब चीजों को डेवलप कैसे करूँ, ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस को मुझे कैप्चर करना है। तो अभी क्या हो रहा है कि आज के सिस्टम से ये नहीं हो पा रहा, मल्टीपल विजिट हो रहा है कस्टमर के पास। अब एक बार मान लीजिए जग्गा जी का नीचे वाला कोई बंदा जाके इन्वेस्टिगेशन करके आया, क्वालिटी चेक करते समय जग्गा जी बोलते हैं क्या किया तुमने, ये सवाल नहीं दिया, वापस जा, फिर जाएगा बेचारा, फिर खर्चा करेगा, फिर वापस आएगा, फिर पता चला नया लोग, फिर वापस जा। अरे ये क्या सिस्टम है? या तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या जग्गा जी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो निकाल देंगे या जो भी करेंगे, या कंपनी बात नहीं आते वो बोलेंगे चल जो आया तो सबमिट कर हटा, है ना, इतना ही फीस मिलता है तो क्या है। तो उसके बाद क्या होगा, क्वालिटी चेक में आप लोग बोलने लगते हैं कि ये क्या है सिस्टम, है ना। तो अभी आने वाले समय में अभी जो बॉट को जो डेवलप किया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ, देयर आर टूल्स। जैसे अपने वॉइस पे आपको वर्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हो, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। अब अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, अलग अलग तरीके का जवाब आ रहा है। अब वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम ताकि वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जवाब को समझ के वो नया क्वेश्चन बता पाए, या एटलीस्ट सिस्टम ये बता पाए कि अब ये सवाल पूछो। जैसे मान लो कि मैं कंप्यूटर पर बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसे पूछा हाँ आपका नाम क्या है, जगह है, तो कहाँ रहते हैं, इसे पूछ लिया। तो सर ये जब क्लेम आपको जो पॉलिसी मिला था, मान लीजिए नॉन डिस्क्लोजर का केस, नॉन डिस्क्लोजर मैंने पहले से डायबिटीज से बताया नहीं बंदे ने, तो उसको पूछेंगे ना कब, जैसे नॉर्मली पूछे आपको कितने साल से डायबिटीज है, वो बोले अभी तो पहली बार डिटेक्ट हुआ, यही बोलता है ना वो, अभी डिटेक्ट हुआ सर, अभी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, अब उसके बाद तो क्लेम पे जाना है। तो आइडियली पूछने का तरीका के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे पूछे कि सर तो आप ये गोली कितने साल से ले रहे हैं, जो डायबिटीज की गोली है वो कितने साल से ले रहे हैं, आई डोंट नो। मैं बोला ना इट ऑल, कोई 2+2 4 होगा इन्वेस्टिगेशन में, जरूरी नहीं है, सब फॉर्मूला अलग है, इसमें अलग अलग सिचुएशन में अलग फॉर्मूला, किससे बात कर,
पापा से बात कर रहे हो तो अलग बात करना पड़ेगा, बेटा से अलग बात करना पड़ेगा, उसकी वाइफ से अलग बात करना पड़ेगा, तभी जाके एक चीज निकल के आती है। तो bot has to be developed in such a way so that it asks the right question in a different way and trigger based question हो। अब अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक ट्रिगर है आपके पास, मल्टीपल क्लेम्स फ्रॉम सेम व्हीकल, आता है ना ट्रिगर, बार-बार आ रहा है, उससे जो सवाल पूछूंगा मैं कि बार-बार उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, और एक दूसरा ट्रिगर है कि पॉलिसी खरीदते के क्लोज प्रॉक्सिमिटी के, जिस दिन पॉलिसी खरीदा उसी दिन एक्सीडेंट हुआ है। ये दो ट्रिगर है, दोनों ट्रिगर में क्वेश्चन का पैटर्न आफ्टर सम टाइम हैज टू बी डिफरेंट, इट कैन नॉट बी द सेम क्वेश्चन। ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन में सेम क्वेश्चन पूछते हैं, सेम आंसर आता है, सेम फिलअप हुआ, कचरा भर दिया जाता है ना। आपको अलग सिचुएशन में अलग क्वेश्चन पूछने हैं, तो वो रोबोट को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि वो अलग ट्रिगर में अलग सवाल पूछे। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज हाउ डिजिटली इंश्योरेंस कंपनीज आर गोइंग टू मूव आफ्टर सम टाइम, एंड वी एक्सपेक्ट यू गाइस टू कम अप टू द कर्व सो दैट आपके पास वो मॉडल हो। आप लोग आज 50 कंपनी के लिए काम करते हैं, 50 नहीं मतलब जितने कंपनी के लिए काम करते हैं उतनी कंपनियों का अलग अलग सिनेरियो केसेस आते हैं। आपको पहले पूछना चाहिए ट्रिगर क्या है, खाली जेन्युइननेस चेक करो ये नहीं होता है, ट्रिगर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करते समय ट्रिगर मिल लेता है कई बार नया कि उसने वो बात करते समय वो छुप रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, मान लो, तो दिस इज अनदर ट्रिगर। उस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसा क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, वो मुझे कहीं कैप्चर करना पड़ेगा, और उसको कैप्चर करके अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा, अपने बंदों को ट्रेन करूंगा। ये टैलेंट हमको मिलता है जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करते हैं ना कोर्ट में जी, तो उनसे हमको वकील जो हमको क्वेश्चन करता है उससे हमको टैलेंट मिलता है, और उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आप में ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होता है कि कौन सा क्वेश्चन कब करना है, और एक क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन आया है तो उसको फिर पीछे लेके उसी को घुमा के कैसे पूछना है। तो ये जो टैलेंट आपको आया सर, आप मैं बताता हूँ यहाँ पे इतने इन्वेस्टिगेटर हैं, यहाँ पे 10% से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर कोर्ट पे नहीं जाते होंगे एविडेंस देने, तो ये तो फिर सबको कैसे आ जाएगा। और आपको आप आज जो जवाब देते हो वो आपका बंदा जो 1 साल वाला उसको कहाँ जवाब है, तो वो अब आपको तो उसको ट्रेन करना है ना कि वैसे ही वो कर पाए, तभी तो जाके कल द रिपोर्ट व्हिच ही इज गोइंग टू सबमिट टू द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव वेटेड। अभी यही बहुत बार प्रॉब्लम होता है जब हम लोग इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर्स के साथ डील करते हैं, तो हमको मालूम है ये तो मिस्टर सुरेंद्र जग्गा है, इनको तो सब आता है, इनको अगर मैंने केस दिया तो ये तो तोड़ के ले आएंगे, बट जग्गा जी को भी मालूम नहीं है, उनको भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर ये केस में अपने लड़के को दे दूं तो उतना ही काम करेगा, और वो गड़बड़ करता है और इधर काम हैम्पर होने लगता है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, सो वी हैव टू डेवलप दिस काइंड ऑफ टूल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ऐप बनाओ, मैं एक सिस्टम बताता हूँ, ऐप बनाओ जिसमें जो भी बात होता है वो सब रिकॉर्डेड रहे और आपके क्लाउड पे सेव रहे, और वो ऐप we have already developed, if I can show you, जो कॉल होता है, already we have developed one bot for our employees, मैं दिखाता हूँ कि जो डॉक्टर रात में नहीं रहता है, तो if you want to ask any question, he can ask to this bot. This is our TruthMining bot, where it will question, it will give answer to every medical question to my investigator. And also we have developed one application where you know the call recording is there, video calling is there. The geotagging will also come, and we are upgrading that application to as soon the conversation is going on. After that, the entire conversation will come in, like in report format. I have my application. It is 95% developed, but we bought the bot calling and all. Let's see. For calling, we have one. That was I show you, sir. I have written yes and उसने जवाब दिया, दिया उसने जवाब, मतलब आ रहा है, I could understand. तो ये जो सिस्टम है इस वेरी इनिशियल स्टेज यही से चालू होगा, मतलब धीरे-धीरे यू हैव टू, and this is will not cost us more, sir. Artificial intelligence आया है, and also इतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इसमें 50% तो हमने करा, and in 10 days of 15 days of time almost हो जाएगा, because 95% application ready है, it is in my we are using it currently, it is on testing, and I am about to compare with also. Great, very nice.
pardon sir? We have developed application face-based. Scan your face. हाँ. It will tell you all mental status or everything. Very good. मतलब आदमी का मेंटल कितना उसमें डिस्टर्ब है क्या है? अभी recently not everything is there. वेरी गुड। अभी रिसेंटली मैंने एक ऐप देखा, वो चेहरा देख के बता देगा फोटो से कि आपको कौन सी बीमारियां हैं। This also can give you 10 diseases, not more than that. अब बताओ, अगर 10 डिजीज दे दिया उसने और डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये सब आ गया, वो Who is आपका working on it? प्री एग्जिस्टिंग का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा ना यार। शुगर फिट बोल रहा है मैं, उसमें चेहरा देख के पता चलेगा। They haven't taken license from me. Because They haven't taken license from me. video calling will go, and this is call. where ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेटर का मोबाइल नंबर आएगा और जो कॉल आपने एंट्री किया उसका आएगा, उसको कॉल जाएगा डायरेक्टली। वेरी गुड। कॉल मेरा मेरा मोबाइल पे आएगा, उसके बाद उसके पास आएगा। वेरी नाइस। इसमें इतना तो डेवलप नहीं किया है, इसमें तो एटलीस्ट 50% हमने ट्राई किया। हेलो। 50% हमने ट्राई किया है। Good. So this is how we have to develop. So like today अभी दो लोगों ने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने किया, तो my request is you guys have to also develop on this so that आने वाले टाइम में कि आप अंडरस्टैंड करो कि लाइफ इंश्योरेंस में जैसे उन्होंने बताया, हरीश नाम था ना उनका, हरीश ने बताया कि हम सिर्फ 3 साल तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसके बाद तो गेम ही नहीं है, खत्म। अभी वो अगर नया पॉलिसी बेचना कम कर दिया कंपनी ने तब तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं आएगा, बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें अब अगर मान लो कोई कंपनी का बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो जल्दी इनको इन्वेस्टिगेट करना। जैसे ही टोल्ड एट अंडरराइटिंग स्टेज, उनके पास टाइम नहीं है, 2 दिन में पॉलिसी कॉपी सबके पास जाना है। जनरल इंश्योरेंस इज वर्किंग, जब कस्टमर पैसा दे रहा है उसका एंट्री हुआ, इधर एंट्री हुआ उधर उसके अकाउंट में, उसके मेल आईडी पे उसको पॉलिसी कॉपी जा रहा है। इस फ्रैक्शन 1 मिनट का भी डिफरेंस नहीं है, जिसपे लाइफ थोड़ा ज्यादा चेक करना पड़ता है लाइफ इंश्योरेंस में। जनरल में तो जो 2-4 डॉक्यूमेंट पे दे दो उसको तुरंत इंश्योरेंस। अब वो गाड़ी मेरे नाम का है कि नहीं पता नहीं, दे दो, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस वो मेरी बीवी है कि नहीं, दे दो, मतलब वो सब दे दिया जाता है। तो इसमें अगर हमारे पास डिवाइस या हमारे इंटेलिजेंस इतना नहीं है, एनालिटिकल डेटाबेस, तो वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई फ्रॉड एट द इनिशियल स्टेज। मूविंग अहेड, मैं आपको ये एक स्लाइड, मैं आपको ये लास्ट स्लाइड है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो मैंने पॉइंट से स्टार्ट किया था कि व्हेन वी स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस, आज मेजर इशू क्या है कि हम स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन में कस्टमर मिल नहीं रहा, उसको डिलीवरी करने की, उसको बार-बार अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग टेक सॉल्यूशंस वी आर गोइंग टू यूज और वी आर यूजिंग, बट आर वी वेरी फ्रेंडली विद द कस्टमर while doing an investigation? Are we very solution oriented? क्या है कि जब मैं कस्टमर से बात करूं, how much solution oriented I am, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकता हूं क्या? Am I empathetic? Empathetic का मतलब क्या है कि I should step in the shoes of the customer and then think or feel how the situation is happening. Am I that empathetic or not? What are how I can use my positive body language to ensure that the customer is happy when he is discussing with me? Same way, am I properly well dressed? Am I formal while talking? इसी के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो कनेक्ट के ऊपर है। अब वीडियो कनेक्ट पे बात होता है कस्टमर से, और ये कॉल आप सुनिए, इसमें कैसे कस्टमर इरिटेट हो गया। कस्टमर पहले इरिटेट हो जाएगा और बाद में उसको कैसे मैनेज करते हैं। ये जो मैनेज करा जा रहा है उसमें सॉफ्ट स्किल का एग्जांपल देखिए, मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मैंने एक केस देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं बोला ये आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज दैट केस, दिस इज अ हेल्थ क्लेम केस, हेल्थ कैशलेस क्लेम, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात हो रही है कस्टमर से। लेट्स गो थ्रू दिस। वेब ब्लॉग्स में आप सिग्नेचर करके सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सिग्नेचर कहाँ होते देगा? आप पर्टिकुलर से कीजिए व्हाइट बॉक्स में। व्हाइट बॉक्स में ये ऑफिशियल है ना, लीगल है, इलीगल काम चल रहा है यार। हाउ कैन आई गिव यू माय सिग्नेचर यार? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आप हाउ कैन नहीं बस एक ऊपर से हाउ कैन डॉक्टर इज आल्सो ऑन द लाइन, हाउ कैन आई गिव यू माय सिग्नेचर यार?
I should be sure about all these things here. Doctor, what is it? Doctor, Not your original signature, na? So just to know that you joined the board, you can just write R also and that will do. That you have just, you have okay, right. I have written R. signature. Don't worry, sir. Nothing illegal. No, I have heard so many things are happening nowadays. We understand, sir. I would also be like you if I was in your It's so nice. If you can understand, I'm very happy, doctor. My children also keep on telling me, Papa, आप ये गलती कभी मत करना, आप फंस जाओगे। मैं बोला बाबा नहीं फंसूंगा मैं यार। तो इसलिए अभी when you sign with your pen, it is a precise signature. It is signed with your digits, it's not at all precise. I don't know about that. I'm not technically advanced, you know. Not to worry, not to stress, sir. So we start with the call, sir. I'm Dr. Prerna. I'm speaking on behalf of Bajaj RDS and I'll be helping you with the payment processing. Okay, sir? Yeah. Okay, sir. How are you doing today, sir? How is your health? Yeah, I'm okay. Perfectly all right. Has been very nice. Has been very nice. Since yesterday night, I'm feeling very good. Very good. Okay, so that's very nice to hear, sir. Can you just tell me for what reason did you get admitted here, sir? I got a brain. They say brain paralytic attack. Okay, sir. So I thought it was a mild one. They say it is acute. But I felt my right leg with the knee. I was not able to walk properly. And I went to the doctor and I said, oh, this is the problem. Immediately he said, if you are anywhere to go to the casualty, you should have gone immediately and got yourself admitted. Because this could become bad, you know. And they wrote in phone letter admit. Doctor, how can I get admitted so fast? I have to give me a day's time at least. Yes. That's how it all happened, you know, because I have been always keeping very good health. I have never, except for my blood pressure problem. Yeah. I have always been keeping good health. Oh, This is what tell me. Sir, so this happened all of a sudden. You felt some numbness in your right leg and you were not able to walk. Yes, right. Absolutely. Suddenly, when I got down from the train, you know, I started walking and suddenly I found my right leg wobbling, you know, down below. Okay, so you were traveling, sir? Yeah, I was traveling. I was at the station, you know. I got down and I was going out. When suddenly this happened, it came as a shock because this has never happened to me before. Of course. So you immediately came to this hospital, Leelavati Hospital? Yeah, I came to Leelavati because my cousin, you know, close cousin, Dr. Jawahar Manjwani, is attached to Leelavati. So I first went to Dr. Jawahar Manjwani and I told him this. He said, you have to go to a neurologist. This is not, he's an orthopedic surgeon. So he said, you have to go to a neurologist, you can go to this. So let us stop this because this will continue for some while. If you see this video, you will see that initially the boy was asking about signature and the customer got irritated. क्यों भाई? ये क्या है? तुम्हारी कंपनी से लिंक आ रहा है, चोरी हो जाए ना, पूरा पैसा साफ ना कर दे, अभी तो उन्होंने भी सुनाया है, तो इतना चल रहा है, ऑर्डर से कोई साइन ही नहीं करेगा, and suddenly this lady came with all of her soft skill, और उस irritated आदमी को एक झटके में उसने कन्वर्ट किया, और वो बात करने लगी अच्छे से, and finally he is giving answer, अभी से आगे जाके और भी सवाल पूछते हैं कि सर आपको हाइपरटेंशन था क्या कभी, so she is asking in a very polite manner and he is answering everything. So this is what is normally expected from our people. So मैंने बहुत ज़्यादा slide नहीं लाया. I just wanted to give you a flair how you should become digitally smart. At the same time, how you should also have those soft skill in you, so that you don't irritate the customer and ensure that renewal ratio. अभी आने वाले समय की we are also measuring कि अगर एक investigation में case गया, वो renew हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो by default the way we have investigated was not right. ये क्वेश्चन आएगा आने वाले टाइम में. अब कोई बोलेगा कि रिन्यूअल तो ऐसे भी नहीं होता है, तो एवरेज कंपनी का रिन्यूअल रेशियो, सपोज मान लो एग्जांपल, एवरेज रिन्यूअल रेशियो इज 65%.
एवरेज रिन्यूअल इज 65%। अगर कोई केस क्लेम्स में आया तो उसका एवरेज रिन्यूअल रेशियो कितना होता है? 38%। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन में आया तो उसका रिन्यूअल रेशियो कितना है? 2%। अब ये 2%, 38%, 64.5%, बहुत ज्यादा गैप है ना। इस 2% को अगर मैं ईयर ऑन ईयर बढ़ाऊं, 2% से बढ़ के वो 5 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, या एटलीस्ट क्लेम आने के लेवल तक तो पहुंच पाए कि इन्वेस्टिगेशन होने से कस्टमर को दिक्कत नहीं हुआ या रिन्यू हो रहा। दैट इज द टारगेट विथ व्हिच वी हैव टू मूव एज वी मूव अहेड। सो दिस इज अ विजन व्हिच आई जस्ट वांटेड टू लीव यू ऑल विथ, कि वंस यू इन्वेस्टिगेट अ केस, एंश्योर कि आपके ऑफिस में लड़कों को टेक्निकली स्मार्ट करने के साथ साथ उसको सॉफ्ट स्किल में भी स्मार्ट करना है। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एजेंडा फॉर यू गाइस। सर यहाँ पर मेरा एक कहना था, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, कि किसी भी इंसान की दो इमोशंस होती है। एक होता है जैसे कि आपने सॉफ्ट स्किल उसको प्रेम से ठंडा किया और उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। दूसरा होता है कि उसको इतना गर्म करो कि वो सब कुछ बताना, मतलब अपनी तरफ से ही है ना, गुस्से में सब कुछ बताना शुरू करता है। तो ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसका दो इमोशन को हम कैसे मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन की साइकोलॉजी हम जब किसी को समझाते हैं कि आप किसी को इंटरोगेशन करने जाते हो या इंटरव्यू करने जाते हो, ये दो चीज़ें, एक है इंटरोगेशन, एक है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू है जो सॉफ्ट स्किल है, इंटरोगेशन जो है वो उसकी दूसरी इमोशन को हम लोग है ना कैसे भी उसको ट्रिगर करते हैं कि इसको गुस्सा इतना दिलाया जाए कि ये गुस्से में ना सब कुछ बोलना शुरू कर दे, प्रोवोक करना है, प्रोवोक करते हैं। बहुत ही वैलिड बात बताया आपने सर। और ये क्या है, ये दिस कम्स ओनली विद एक्सपीरियंस, दिस विल नॉट कम ऐसे ही, कोई कुछ नया नया बंदा जाके ये नहीं कर पाएगा। तो अब इन दोनों इमोशंस के बीच में बैलेंस कैसे करेंगे, दैट इज वन चैलेंज। सेकंड इशू जो मैं बताया हूँ कि रिन्यूअल रेशियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग फॉर द केसेस जिसमें हमको फ्रॉड मिला है, उसका रिन्यूअल से कोई मतलब नहीं है। जो केसेस जेन्युइन थे उनका रिन्यूअल रेशियो खाली देखना है, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। एंड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ग्लेयरिंग एग्जांपल। ग्रुप मेडिकल पॉलिसी होता है, ठीक है, जीएमसी पॉलिसी में एक क्लेम आया एक लेडी का, उनका डिलीवरी हुआ तो बच्चा हुआ, उसके ऊपर में क्लेम आया बजाज हमारी कंपनी में। अब वो एक लेडी का क्लेम था और उसका ट्रिगर था कि कहीं आईवी ट्रीटमेंट तो नहीं किया इन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए, क्योंकि शादी के 9 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। अब हमने बोला कि किसी को भी देंगे तो गड़बड़ होगा, तो हमने लेडी इन्वेस्टिगेटर, लेडी डॉक्टर इन्वेस्टिगेटर को हमने केस असाइन किया कि आप इन्वेस्टिगेट करो। वो उससे पहली बार तो फोन पे इंटरेक्ट हुआ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, एंड दैट इंटरेक्शन में भी शायद उसने सही तरीके से अपॉइंटमेंट, क्योंकि आप जब लेडी को बच्चा हुआ ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है, उसका रूटीन चेंज हो जाता है, रात को 2 बजे सो रही है, सुबह 4 बजे उठ रही है, इमोशनली वीक, हाँ इमोशनली बहुत वीक हो रही है। उस टाइम पे एक आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो कि मैं आऊंगी 12 बजे, अब वो बोलती 12 बजे मत आओ, 1 बजे आओ, मतलब मैं उधर से ही गुजर रही हूँ तो 12 बजे मिल लेता हूँ। अब वो रेडी है नहीं है, मतलब प्रॉब्लम में है बेचारे, है ना। उस बीच में इन्वेस्टिगेटर जबरदस्ती, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को लगता है बहुत खर्चा हो जाएगा, इधर से निकल जाऊंगा फिर दोबारा उधर आना पड़ेगा, अब उसी में है ना, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि वो पहुंचती है लेडी के पास इन्वेस्टिगेशन करने, और इन्वेस्टिगेशन करते समय पहले सवाल पूछ लिया सर कौन है क्या है सर, एंड फाइनली तो मैडम ये 9 साल से बच्चा नहीं हो गया, अचानक से बच्चा कैसे हो गया आपको? जस्ट इमेजिन, वो लेडी है, उसको बच्चा कैसे हो गया, सवाल पूछोगे कितना प्रॉब्लम, मतलब कैसे होता है बच्चा, है ना। अब ये सवाल आप पूछोगे तो क्या होगा? अब उसने एस्केलेट किया केस, उसकी सेकंड इमोशन उसने एस्केलेट किया केस, सीईओ तक केस गया, मेरे पे आ गया एस्केलेशन की स्थिति। क्या कैसा फालतू इन्वेस्टिगेटर रखो, तुमको बंद करो तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम ये। जस्ट इमेजिन, मैं सेकंड बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बंद करो यार। ऐसे तुम लोग ट्रेनिंग देते हो कि नहीं देते लोगों को, बात कैसे करना है, ड्रेसअप कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो इन्वेस्टिगेशन का टेक्निकल के अलावा इस टॉपिक पे मेरे मतलब पूरे कपड़े उतार दिए, कितना झगड़, मेरे डांट पड़ी है। अब
एनीवे बाद में मैंने उस लेडी से मैं खुद बात किया एंड मैंने केस को किसी तरह से ठंडा किया। पता ये चला कि वो जो लेडी है एक जीएमसी पॉलिसी है, ग्रुप मेडिकल पॉलिसी आता है कंपनी में, 4 करोड़ का प्रीमियम आता है, वो एचआर हेड है उस कंपनी, उसी के साइन पे क्लेम आता है, 4 करोड़ आता है कंपनी। अब उससे जाके एक सवाल और पूछ लिया और ज्यादा सवाल हो गया। अब अगले साल वो रिन्यू होगा कि नहीं पॉलिसी पूरी टेंशन नहीं है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सारे इन्वेस्टिगेशन वालों से पूछिए, सब लोग ये प्रॉब्लम से चल रहा है। अगर यही क्वेश्चन, यही सिचुएशन में अगर मैं गया होता, मैं जस्ट अपने आप सोच रहा था कि अगर मैं गया होता तो मैं कैसे बात करता। अब मैं तो लड़का हूं, वो तो लेडी है, अब लेडी से मैटरनिटी रिलेटेड सवाल पूछना है, ये और टफ सिचुएशन है, कोई लेडी पूछे उससे ज्यादा टफ सिचुएशन है। मैं जाता तो कैसे पूछता, मैं जाता उसको मिलता और उसके बाद उसको सबसे पहले क्या करता, उसको कांग्रेचुलेट करता, बहुत बहुत बधाई मैडम, इतने साल बाद आपको बच्चा हुआ है, ये तो मेरे भगवान का आशीर्वाद है, आई एम वेरी हैप्पी, और मैडम बहुत बहुत बधाई। ये सब पहले थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे अपन, उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि मैडम मेरी सिस्टर है, इफ यू डोंट माइंड, मतलब शी इज आल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो वो काफी आईवी ट्रीटमेंट ले रही है, कुछ हो नहीं रहा, तो आप ऐसे कोई अच्छे डॉक्टर को जानते हैं जो आईवी ट्रीटमेंट वगैरह अच्छा करता हो, या जिसको आपने कभी भी कंसल्ट किया हो इस दौरान। मैं उससे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बच्चा कैसे हुआ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मेरी बहन के लिए, वो बहन है भी नहीं, इल्यूशनरी है कहाँ, है ना, और वो मुझे जवाब देती है कि हाँ वो एसके मेहता डॉक्टर है, अंधेरी वेस्ट में बैठता है, उसके पास जाओ, बढ़िया डॉक्टर है। अब ये तो पता चल गया कि ये एसके मेहता से शायद इसने कंसल्ट किया हो, है ना। अब आईवी ट्रीटमेंट मेरे को निकालना है, अब मैं उससे नेक्स्ट सवाल पूछूंगा, मैडम मैं जाके उनसे अच्छे है ना, मतलब थोड़ा और जानबूझ के एक दो बार प्रॉम्प्ट करने के बाद आगे डेफिनेटली आस्क कर कि मैडम कैन आई गिव योर रेफरेंस, आपने कभी चेक कराया होगा तो बोले हाँ दे सकते हो, और XYZ या भूल गए होंगे, तो मैडम आपको कोई अगर कोई ट्रीटमेंट नंबर अगर होगा ऐसा फाइल में, वो नंबर तो वो बोलूंगा तो रेफरेंस अच्छा हो जाएगा, तो एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। इससे मेरा सेकंड बेनिफिट हो गया, मेरे को वो नंबर मिल गया, वो तारीख मिल गया कब उसने देखा, तो मैं जिस बंदे को सेट करूंगा उस ऑफिस में फाइल निकालने के लिए, उसको डायरेक्ट फाइल नंबर बताऊंगा, रादर देन मैं ये जाकर बताऊं कि पुष्पा देवी को का फाइल खोजो, अब उतना बड़ा लिस्ट में पुष्पा देवी कहां खोजेगा, उसको डायरेक्ट नंबर मिल जाए, एंड शी विल बी रिवीलिंग मी एवरीथिंग थिंकिंग दैट शी इज हेल्पिंग माय सिस्टर, है ना। एक्चुअली मैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करके ले गया, मैं बाहर जाऊंगा थोड़ा फाइल निकालूंगा, मैं इसके अंदर ऑफिस में बैठा हुआ चौकी मार के भैया आप निकाल फाइल, जो भी आदमी को पकड़ूंगा उसे निकालूंगा, फाइल निकालूंगा, डिटेल निकालूंगा, सब फोटो फाटो सब ले जाके कंपनी में आऊंगा विद एविडेंस, ये देखो ये आईवी ट्रीटमेंट लिया है, ऐसा बच्चा नहीं हुआ। दिस इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्किल, इससे भी अच्छा तरीका होगा कोई, आई डोंट नो, मतलब ये मैं जस्ट अपने मन में सोच रहा था। मैं बोलता हूँ टीम को इस तरीके से डेवलप करना है, आपके पास सॉफ्ट स्किल का प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, बेसिस आपने जितने इन्वेस्टिगेशन किया उसको आपने लेकर ऐसा बनाइए ताकि टीम को प्रोडक्ट बताते समय पहले सॉफ्ट स्किल के साथ साथ ये ट्रेनिंग होना चाहिए, एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन सर एक छोटा सा, सर यहाँ से, सर यहाँ से लेटर लास्ट बस थोड़ा टाइम शॉर्ट है थोड़ा